یا حسین یا حسین یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اطرتہ اہل بیتہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ناظرین و سامعین کرام، آپ سب کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ خاور حسین وارثی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو کے پاک ٹی وی لندن کے زیر انتظام یہ یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور لندن میں ہونے والی یہ خصوصی نشریات، بالخصوص انجمن سیدہ فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا اور راہ خدمت فاؤنڈیشن لندن کے زیر انتظام فلسفہ کربلا میں آپ تمام احباب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، آج یکم محرم الحرام، بلکہ آج آغاز یہاں سے یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ مختلف ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں بولنے کی روانگی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہ ایام حسین ہیں اور درد بڑے لمحات ہیں، غم کے لمحات ہیں، اس میں بولنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بادشاہ حسین علیہ السلام، امام علی مقام سیدنا امام حسین اور 72 شہدائے کربلا، ان کا ذکر کریں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، ان کے مصائب بیان کریں، اور ہر پروگرام میں الحمدللہ ہم نے شان بیان کی، ہم نے مصائب بیان کیے، لیکن بہت سے کم پروگرام ہیں، بہت خاص پروگرام ہے جہاں پر فلسفہ بیان کیا جاتا ہے۔ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا، اس کے حوالے سے بہت کم گفتگو کی جاتی ہے۔ شہادت کا مقصد کیا تھا، کربلا کا مقصد کیا تھا، اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ یہ نواسۂ رسول امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ایام ہے، یہ انہی کے دن ہیں، اور ان کے حوالے سے ہی ہم اپنا عقیدہ، اپنی محبتیں، اپنا سلام ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ازل سے ابد تک کرتے رہیں گے، ہم ہوں نہ ہوں ذکر حسین ہوتا رہے گا۔ اور جو سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، امام ختم ہو گئے، ان کا ذکر آج بھی بتاتا ہے کہ حسین زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں، اور ہم رہیں نہ رہیں یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ اور اپنی ڈیوٹی، اپنی محبت اور اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا حصہ فلسفہ کربلا ہم نے شروع کیا، اور جس میں ہمارا ساتھ دیا، محبتیں پیش کی کنیز سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ خانم ام فروہ زیدی صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنی محبتیں پیش کی، اپنا وقت دیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے محرم الحرام کے بہت جو ہے وہ مصروفیات کے دن ہوتے ہیں، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے پھر بھی ہماری اس محبت کو، ذکر حسین کو قبول کیا، اور ناظرین کو وہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ جو حقیقتاً پیغام دینا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یو کے پاک ٹی وی کی جانب سے، انجمن سیدہ فاطمہ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا کی جانب سے، راہ خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور ماشاءاللہ آپ نے پورا عشرہ ہمیں دیا، اور یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک ایک تسلسل کے ساتھ فلسفہ کربلا کو بیان کرنے کی آپ کوشش کریں گے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور آج جو سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا وہ بڑا خاص سوال ہے، اور بہت کم ذکر ہوتا ہے اس چیز کا محرم الحرام میں، کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ کی جانب گئے، اور مکے میں حج کے دن تھے، ایام حج تھے، اور ذی الحج کا مہینہ تھا، اور حج بالکل قریب تھا۔ 8 ذی الحج کو آپ جو ہے وہ حج کو عمرے میں تبدیل کر کے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کربلا کی جانب گئے۔ بلکہ میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سال امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حج نہیں کیا، بلکہ میں یہ کہوں گا، عشق والے بھی یہ کہتے ہیں، محبت والے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سال حاجیوں کا حج ہی نہیں ہوا، اس سال حج ہی نہیں ہوا، کیونکہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کربلا کے سفر کی جانب چلے گئے تھے۔ تو سیدہ خانم ام فروہ زیدی صاحبہ، ہماری بہن مرثد تشریف فرمائے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ناظرین کی بھی اصلاح کیجیے گا، میری بھی اصلاح کیجیے گا، کہ اگر شہادت مقصد تھا تو مدینے میں بھی ہو سکتی تھی، مکے میں بھی ہو سکتی تھی، اور بھی کوئی جگہ منتخب کی جا سکتی تھی، لیکن امام نے کوفہ بھی تھا، کربلا بھی تھی، لیکن کربلا کو ہی کیوں آپ نے سفر کا منزل بنائی، اپنی سفر کے لیے روانہ ہوئے کربلا کی جانب؟ اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام سے پہلے ایک شہادت بھی ہوتی ہے، مسلم بن عقیل آپ کی بھی، اور پیغامات بھی رہے، مقصد کیا تھا، فلسفہ کیا تھا، اس پر روشنی ڈالیے گا، بسم اللہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। अय्याम मुहर्रम की इब्तिदा नहायत गम व हिज़्न के साथ है और ताज़ियत पेश करती हूँ बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद में और बारगाह अहदियत में कि ये वो अय्याम है कि जिनकी निस्बत से मैं ये कहूँ कि तारीख़ इस्लाम में और तमाम दुनिया की जितनी भी तवारीख़ गुज़र गई, उन तमाम तवारीख़ में ये वो माह मुअज़्ज़म है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि मख़सूस इस माह को मंसूब किया जाता है जनाब हज़रत इमाम हुसैन आली मुक़ाम की निस्बत से। सैयद मज़लूम का नाम आते ही माह मुहर्रम के तमाम जितने भी इख्तियारात हैं, तसव्वुफ़ है, तमाम खुल के सामने आ जाते हैं कि माह मुहर्रम का मकसद क्या है। तो सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगी, ये हुर्मत का वो महीना है कि जिसे परवरदिगार आलम ने इतना मोहतरम करार दिया था कि इस माह में ख़त्म मर्तबत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे कि इस माह में किसी को ईज़ा ना दी जाए, किसी को तकलीफ ना दी जाए, किसी को वतन से दूर ना किया जाए, किसी को कत्ल ना किया जाए। तो हुर्मत के इस महीने की ताज़ीम को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए ये बात कहती चली जाऊँ कि जहाँ परवरदिगार आलम ने इस माह को हुर्मत अता की, व इस माह मुअज़्ज़म की हुर्मत को बरकरार रखने के लिए जनाब इमाम अली मुक़ाम ने बहुत बड़ा अमन का पैगाम भी दिया और तमाम अक़वाम आलम जानती हैं कि जनाब इमाम हुसैन अली मुक़ाम की अमन पसंदी का क्या आलम था। आपने कहा कि फ़लसफ़ा करबला की हकीकत ये है, हर शय का एक ऐसा नतीजा होता है कि जिसको इब्तिदा से क़ब्ल अख़ज़ कर लिया जाता है और मैं समझती हूँ कि मेरे इमाम मदीना से जब रुख़सत हुए उससे क़ब्ल इमाम जानते थे कि मंज़िल क्या होगी, बल्कि मैं ये अक्सर कहा करती हूँ कि तलाश मक़तल था कि मेरे इमाम जानते थे कि हमारा मक़तल कहाँ है और मेरे मौला ने मदीना की हुर्मत को कायम रखा कि जहाँ ऐसी बातिल क़ुव्वतें बरसरे पैकार आ गई थी कि जहाँ यज़ीद पलीद ने इमाम अली मुक़ाम की तरफ कुछ ऐसे पैगामात भेजे कि यज़ीद की बैत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह यज़ीद की बैत करे, तो तब इमाम अली मुक़ाम ने अपने ज़ाती तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए नहीं, बल्कि शरीयत मुस्तफ़वी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़लसफ़ा करबला में सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि ये किसी हुकूमत की जंग नहीं थी, ये किसी ज़ाती अनाद की जंग नहीं थी, बल्कि ये जंग की इब्तिदा ही ना थी। इमाम ने अमन पसंदी को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए मदीना की हुर्मत को पामाल होने से बचाने के लिए रसूल खुदा का वो शहर कि जिसे आज तमाम उम्मत मुस्लिमा कहती है कि मदीना तो नबी वो है कि जिसकी हवा भी मोहतरम है। तो मैं समझती हूँ कि इमाम सैयद मज़लूम ने यज़ीद पलीद की बैत इसलिए नहीं की कि शरीयत मुस्तफ़वी में वो तरामीम की गई थी कि जिन तरामीम को किसी तौर भी उम्मत मुस्तफ़वी कबूल ना करती। रसूल खुदा की उम्मत के लिए हरगिज़ वो अहकामात नहीं थे कि जो यज़ीद ने नाफ़िज़ किए। तो वहाँ एक ऐसा शख्स कि जो ज़ना को जायज़ करार देता था, एक ऐसा शख्स जो शराब वाफ़र पीता था, एक ऐसा शख्स कि जो नमाज़ के औक़ात में तरामीम करता था, एक ऐसा शख्स कि जिसके बारे में ये कहा जाए कि जिसने अपने दीन की तमाम मिक़दार को पामाल करते हुए रिश्तों के तशख़्ख़ुस को बर्बाद किया, कि जो शख्स अपनी फूफी के साथ निकाह को जायज़ करार देता था, कि जो विरासत में मिलने वाली जायदाद के साथ माँ को भी बड़े बेटे की विरासत को करार दे के जायज़ करार देता था। तो वहाँ रसूल खुदा के हकीकी जानशीन मौजूद थे कि जिनको रसूल खुदा अपने शानों पे उठा के कहते रहे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन बेशक। इब्न अली ने इस बात का ऐलान किया, मुझ जैसा तुझ जैसी की बैत हरगिज़ नहीं करेगा। और इसके वाह, बारे में वाह! तारीख़ इस्लाम ने इतने वाज़ेह शवाहिद दिए हैं कि जब जनाब हज़रत इमाम अली मुक़ाम के बारे में मरवान ने एक मर्तबा अपनी साज़िश को बरसरे पैकार लाके और फिर यज़ीद का पैगाम जब मिला तो उसके ख़त को पढ़ के ये बात कही कि वलीद ऐसा करो कि हुसैन अली मुक़ाम से बैत ले लो। तो शब में इमाम को पैगाम भेजा गया। लोग हक़ाइक़ से वाक़िफ़ नहीं हैं। लोग इस चीज़ जी। को जानते हैं कि 2 शहज़ादों की जंग थी, हरगिज़ हुँ, ये 2 शहज़ादों की जंग नहीं थी। और अगर आप सही। ये कहें कि दुनियावी हुकूमत के लिए इमाम अली मुक़ाम ने ये सब कुछ किया, तो मैं ये वाशगाफ़ कहती हूँ कि मेरे मौला वो है कि जिनके लिए ज़मीन और आसमान को करार दिया हाँ, गया। अगर सुभान ख़त्म अल्लाह, बेशक। मर्तबत के लिए परवरदिगार ने ये कहा ना कि ए हबीब मैंने तेरी मोहब्बत में ज़मीनों और आसमानों को करार दिया, तो हबीब कहते रहे हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो सब कुछ हुसैन के इख्तियार में था, सब कुछ बेशक, हुसैन के तसद्दुक में बनाया गया था। हुसैन को बेशक। ज़ाहिरी ज़िंदगी की
हुकूमत की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ नबी मुकर्रम के बारे में जब ये बात की जाती है कि नबी मुकर्रम ने कहा हुसैन मुझ में से है, तो हुसैन बेशक नबी मुकर्रम में से है, और बेशक फिर कहा कि मैं हुसैन में से हूँ। दूसरे जुमले के हकीकत को जनाब इमाम अली मुकाम ने इस तरह वाशगाफ और इस तरह वाज़े बयान किया कि शरीयत रखी बिनाए दी शहे बद्र हुनैन में, लेकिन किया है दीन को मुकम्मल हुसैन ने। वाह मेरे मौला ने उस बिनाए दीन को देखते हुए उसको मुकम्मल करने के लिए अगर वतन छोड़ना पड़ा तो छोड़ा, अगर बातिल कुव्वतों के सामने डट के खड़ा होना पड़ा तो खड़े हुए। और फिर जब वलीद के दरबार में मेरे मौला को तलब किया गया और मेरे मौला वहां तशरीफ लाए और कहा कि इनसे बैत ले लो, तो एक मर्तबा मेरे आका व मौला ने अपने रुख अनवर को सुर्ख करके अपनी जलालत को दिखाते हुए कहा कि मैं तुम लोगों से ये जुमले सुन तो रहा हूँ, तुम सुबह का इंतजार तो करो, और हुसैन से बैत मांगते हो वो भी शब के अंधेरे में। जब ये जुमले सुने तो मरवान ने कहा कि इससे पहले कि हुसैन चले जाएं, तुम इनका सब मार दो, इनकी गर्दन काट दो। जब ये जुमले कहे तो पलट के कहा हम कत्ल तो नहीं इब्न जरका, तुम्हारी जुर्रत ए नीली आंखों वाली औरत के बेटे, तुम मुझे कत्ल करोगे? मौला कहता हुआ है ना कुंता, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे कत्ल करो? क्यों? मेरा मुकामे कत्ल हरगिज ये नहीं है। मौला के इस जुमले ने ऐसा रोब और दबदबा कायम किया कि जितने हाशमी जवान थे वो दरबार में तलवारें लेके बेनियाम जब जाहिर हुए तो मरवान ने एक मर्तबा कहा चंद कदम पीछे हट जाओ कि हुसैन इब्ने अली इस वक्त आलम में हैबत में है, आलम में जुर्रत और शुजाअत में है। ये ना हो कि फाते बद्रो हुनैन के बेटे हैं, कुछ ऐसा हो जाए कि जिसका सामना हम ना कर सके। जुर्रत है मेरे इमाम की। फिर मेरे मौला आका ने अलमदार वफा के सीने पे हाथ रखा। आका ने फरमाया अब्बास अपनी आंखों को ठंडा रखो। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हुर्मत मदीना पामाल हो। मेरे मौला आका ने तमाम मुक़द्दरात इस्मत को जमा किया, जवाना ने बनी हाशिम को जमा किया, और मुज्तमा करने के बाद ये मैं आपको बताऊं कि देखिए जब कोई शहर छोड़ सबसे पहली चीज ये होती है कि वो अपने आबाओ अजदाद की मरकद, अपने आबाओ अजदाद की कब्रों से रुखसत चाहता है। हुसैन इब्न अली ने दिन होने का इंतजार किया, अपने तमाम मुक़द्दरात से कहा कि आप अपने असबाब सामान तैयार करें कि अब मदीना तुन नबी से हम रुखसत होंगे। पाइने मजार मरकद जनाब सैयद मज़लूम उस वक़्त आए नाना के जिस वक़्त मेरे मौला आका अपने नाना की मज़ार पे चिराग जलाया करते थे। मेरे मौला पाई ने मज़ार आए, कदमों के रुख पे आके सर झुका दिया, एक मर्तबा आंखों से नीर बहाए, आंसू बहा के कहा नाना अब मदीना हुसैन के रहने के काबिल नहीं रहा। नाना हुसैन मदीना छोड़ता है, हुसैन को इजाजत दीजिए। तो मरकद रसूल में जलजले आने लगे। मेरे नीस लिखते हैं कि वो आलम था कि तावीज़ कब्र हिलने लगा था। नबियों के सरदार ने दस्तार गले में डाली हुई थी, गिरेबान चाक था। एक मर्तबा देख के रूह रसूल तड़पी, रोके का हुसैन तुम चले जाओगे तो मदीने में क्या रह जाएगा? फिर शायर ने कहा कि सदा ये आई मदीने में मग़रिबैन के बाद, रसूल कैसे रहेंगे यहाँ हुसैन। मेरे मौला आका जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा हुए, माँ की कब्र पे आए, तावीज़ कब्र पे सर रख के बहुत रोए। मेरे मौला तड़प के कहा माँ फातिमा ज़हरा अब आपसे मुलाकात उस रोज होगी जिस रोज शिमर मलाऊन मेरी पुश्त पे सवार होगा और आप अपने बेटे का सब्र देखने आएंगे। तो ये हकायक है कि जब मदीना से मेरे मौला रुखसत हुए तो तमाम अहले मदीना देखते रहे कि दोशे रसूल का सवार जा रहा है। तमाम असबाब ऊँटों पे लादे गए, मुक़द्दरात इस्मत को साथ दिया। गर्मी का शदीद सख्त तरीन मौसम था कि कहते कि रेत पे दाना गिरता तो भुन जाता, कि कोई तायर दिन में परवाज ना करता था, कि पानी का कतरा जमीन पे गिरता तो खुश्क हो जाता। इस सख्त तरीन मौसम में मेरे मौला आका ने मुक़द्दरात इस्मत के साथ मासूम बच्चों के साथ मदीनातुन नबी को छोड़ा और फिर मदीने से रुखसत हो के मेरे मौला मामिने मक्का में तशरीफ लाए। आपने कहा ये वो आलम था कि जहां मेरे मौला हरगिज़ मदीना को छोड़ने के लिए तैयार ना होते, लेकिन मेरे
जानते थे कि अगर मदीना को छोड़ा ना गया तो हुर्मत मदीना पामाल हो जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ कि मक्का में मेरे मौला व आका बाज़ रिवायतों में मेरे मौला ने 50 दिन मक्का में गुजारे, और उसके बाद जो अय्याम हज हैं जिनके बारे में अभी आपने जिक्र किया कि लोग हज कर रहे थे, तो मैं ये बात जी कहती चलूं कि वारिसाने काबा को हज नहीं करने दिया गया। मेरे मौला व आका को खबर मिल गई थी कि हाजियों के एहराम बांध के दुश्मनों ने जहर में बुझी हुई तलवारें रखी हुई हैं, अच्छा, और ये कहा गया था कि हुसैन इब्ने अली को हरम खाना खुदा में कत्ल कर दिया जाए। जब हुसैन इब्ने अली को खबर हुई, मेरे मौला व आका ने, लोग कहते एहराम तोड़े नहीं। मेरे इमाम मनसूस मिनल्लाह है, मेरे इमाम वो हैं कि जो निसे नाकिस की तरफ रगबत नहीं कर सकते हैं, पर मेरा इमाम शरीयत का इमाम है। मेरा इमाम कोई गैर शरई फेल कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परवरदिगार आलम ने उनको उस मुकाम से, उस ओहदे से नवाजा है कि जिसके बारे में ये कहती चली जाऊं कि गलती का इम्कान मेरे आका और मौला में हरगिज नहीं। नाना के दीन को बेशक, मुकम्मल तौर पे कायम करने वाले मेरे वो इमाम हैं कि जिन्होंने जब देखा यौम तरबिया 8 जिलहज के रोज मेरे आका और मौला ने देखा जहर में बुझी हुई तलवारें एहराम में छुपाए हाजियों के रूप में खाना खुदा में हुसैन को कत्ल करने आ रहे। किसको कत्ल करने का इरादा? उसको जिसे रसूल कहते रहे लहमुहुम लहमी दुमुहुम दुमी योलिमुनी मा योलिमुहुम यहज़ुनूनी व यहज़ुनुहुम अना खरबन लिमन खरफकुम अना सलमन लिमन सलमकुम अना अदुव्वन लिमन आतकुम अना मुहिब्बुन लिमन आखिबकुम इन्नकुम मिन्नी व अना मिनकुम। लोगों इसका गोश्त मेरा है, लोगों इसका खून मेरा है, लोगों इसका जिस्म मेरा जिस्म है। लोगों ये समझ लेना जो इससे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो इसका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। तो जानिए इमाम सैयद मखदूम को कत्ल करने का इरादा नहीं था, रसूल खुदा को कत्ल करने का इरादा था। मेरे मौला ने हिकमत इलाहिया को बरुएल कार लाते हुए एक मर्तबा खाना खुदा से 7 कदम पीछे हटा के हज के बंधे हुए एहराम उम्रे में तब्दील किए। एहराम तोड़े नहीं हैं, मेरे मौला उम्र ने एहराम उम्रे में तब्दील किया है। और फिर जी उम्रे में तब्दील करने के बाद तमाम जवाना ने बनी हाशिम ने उम्रा मुकम्मल करने के बाद फौरन खाना खुदा को मक्का को छोड़ने का इरादा किया। और फिर जब मेरे आका और मौला मक्के से बाहर निकले तो ये मुस्तनिद रिवायात है कि मौला के पास मंजिल के लिए 2 जगह थी कि जब आका मक्का में तशरीफ फरमा रहे तो 12,000 खतूत कूफा से भेजे गए थे कि या हुसैन इब्ने अली, हम चाहते हैं कि आप जनाब खत्मी मर्तबत की फराइज अदा करते हुए, जनाब खत्मी मर्तबत के सच्चे जानशीन होते हुए कूफा में तशरीफ लाए और नमान बिन बशीर की इस हुकूमत को ख़त्म करके आप वो हुकूमत कायम करें कि जहाँ हमें अमन भी मुयस्सर हो, जहाँ हम नमाज जुमा भी अदा कर सकें, जहाँ हम नमाज ईद भी अदा कर सकें। सैयदा खानम फरवाज़ साहिबा, मैं इसी आपकी गुफ्तगू को अगले प्रोग्राम में यहीं से हम आगाज़ करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब जा रहा है और हमने इसको यही बात को 10 मुहर्रम तक लेके जाना है और समझना है कि इमाम का मकसद क्या था। हम कहते हैं कि इमाम को भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया, नहीं, इसके पीछे कुछ राज था, कुछ हिकमत अमली थी और अल्लाह की रज़ा थी इसमें। और इमाम को हमें ये आज यकम मुहर्रम हुई है और नया साल इस्लामी साल शुरू हुआ है और ये हमें सिखा रहा है कुर्बानियाँ, हमें सिखा रहा है अपने नफ्स पे काबू किस तरह करना है इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इन आयाम के ज़रिए से। तो इसी के साथ अपने मेज़बान ख़ावर हुसैन वारसी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।